Going to discuss the new welfare economics theory, compensation principle. Compensation principle was developed by Calder and Hicks, and it is an improvement over the Pareto's optimality condition, Pareto efficiency criteria, and it is also called the new welfare economics theory that was initially given by Calder, and then Hicks supported his idea, and after that it was also called as a Calder-Hicks theorem. So compensation principle is an improvement over the Pareto efficiency criteria. So let's start with the introduction, why this theory came. So Pareto laid the foundation of modern welfare economics by formulating the concept of social optimality, which is based on ordinal utility. Pareto, as we have earlier learned, the Pareto's optimality condition was based on the ordinal utility, and it was free from the interpersonal comparison of utility and वैल्यू जजमेंट कि वैल्यू जजमेंट और ऑर्डिनल वैल्यू जजमेंट से फ्री है और ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है, नॉट बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी. He aimed at formulating the value free objective criteria to measure the social welfare. But Pareto criteria states simply that an economic change which harms no one and benefits someone, that will increase the social welfare. If we want to increase the social welfare, then we have to do better off of someone without doing harm to other person. Then social welfare can increase. Pareto said that. But this criteria doesn't tell us about changes in the level of social welfare if due to policy change someone is in better off position and it is making worse off to the another, कि अगर एक का better off हो रहा है और दूसरे का worse off हो रहा है किसी policy change की वजह से, तो हम social welfare को कैसे measure करेंगे? That was not explained by the Pareto. So Calder and Hicks formulated this compensation criteria, compensation principle, by criticizing the Pareto on this basis that the policy changes, if due to policy changes, if someone is in better off position and another is in worse off position, then social welfare cannot be measured, social welfare cannot be increased by Pareto optimality condition. So this compensation principle try to introduce a theory in which we can measure the social welfare by in such a situation where one person is in better off position and second person is in worse off position. So एक better off में है, दूसरा worse off में है, फिर कैसे हम सोशल वेलफेयर को चेंज करते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका आंसर कैल्डर एंड हिक्स ने कंपनसेशन प्रिंसिपल के थ्रू दिया है. इकोनॉमिस्ट मेनली जो कंपनसेशन प्रिंसिपल है दैट वाज इनिशियली गिवन बाय कैल्डर एंड लेटर हिक्स आल्सो सपोर्टेड द कैल्डर. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कैल्डर हिक्स criteria. So Calder and Hicks formulated the theory of compensation principle to evaluate the change in social welfare resulting from any economic reorganization which harms somebody and benefit the other. It evaluate and measure the change in social welfare in such economic situation where someone is in better off and another is in worse off condition. So compensation principle, on the basis of this principle we can evaluate the change in economic policy which makes someone better off and other worse off. Because जब पॉलिसी बनती है तो सबको बेटर ऑफ करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है. कोई ना कोई वर्स ऑफ होगा, कोई बेटर ऑफ में जाएगा,
तो पैरेटो ने बोला कि अगर कोई वर्स ऑफ में जा रहा है तो हम सोशल वेलफेयर को इंक्रीज नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते कितना चेंज हुआ है। बट कंपनसेशन प्रिंसिपल इस चीज़ को आंसर दे रहा है कि कोई बेटर ऑफ में जा रहा है, दूसरा वर्स ऑफ में भी जा रहा है, तो हम उसको कैसे सोशल वेलफेयर को मेजर करेंगे, कैसे वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज गिवन बाय द कंपनसेशन प्रिंसिपल. So compensation principle says that if due to policy change, if the people benefiting from it can gainfully compensate the loser, if one is winner and second one is loser, then if winner compensate the loser, then policy change is desirable. That means a social welfare can increase if winner or the gainers can compensate the losers. अगर विनर जो जिसने गेन किया है, जो बेटर ऑफ में गया है, अगर वो अपनी तरफ से वो कंपनसेट कर दे जो वर्स ऑफ में गया है, तो सोशल वेलफेयर पॉलिसी डिजायरेबल है और सोशल वेलफेयर तब भी बढ़ सकती है कंपनसेट करके. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंपनसेशन प्रिंसिपल. So this theory mainly says that social welfare can be increased if due to policy change the better off person compensate the worse off person, then social welfare also increases. So this theory is based on some assumptions. First assumption is the satisfaction of individual is independent of the other. That means my satisfaction doesn't depend on your satisfaction and I am the best judge of my welfare, कि हर एक इंडिविजुअल अपने वेलफेयर का जज बेस्ट तरीके से खुद कर सकता है. There exists no externality of consumption and production. There is no externality whether it is positive or negative, कि हमारा जो कंजम्पशन है या प्रोडक्शन है वो किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रही है. The taste of the individual remains constant. The fourth assumption is the problem of production and exchange can be separated from the production of distribution. That means compensation principle accepts the level of social welfare as a function of level of production. Social welfare is a function of level of production, not based on the distribution. And the last assumption is the utility can be measured ordinally. It also takes the ordinal utility, and interpersonal comparison and value judgment is not possible. So on these assumptions, on the basis of these assumptions, Hicks and Calder claimed to formulate a value-free objective criteria to measure the change in social welfare, whether social welfare is increasing or decreasing due to policy change. Through this criteria, they are going to measure the change in social welfare on the basis of concept compensating payment. That is a compensating principle. So let's discuss about the compensation principle with diagram. So initially, as I earlier said, compensation principle was first developed by Nicholas Calder to give the welfare criteria based on compensating payment. This criteria help us to measure the welfare implication of the movement in either direction of the contract curve. That means if we are going from one point to second point in either direction, in any direction, then how we can measure the social change, that is also defined by Calder. According to Calder's welfare criteria, if certain change in economic organization or policy makes some people better off and other worse off, then change will increase social welfare. अगर कोई बेटर ऑफ में जा रहा है, दूसरा वर्स ऑफ में जा रहा है, तब भी सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सकती है अगर those who gain from the change could compensate the loser and still be better off than before. सपोज कि मैंने गेन किया 100 एंड सेकेंड पर्सन तुमने 80 का लूज कर दिया. इफ
अर्लियर पोजीशन पे हो सकता है हम 70 रहे हो या कुछ भी रहा हो, तो अगर मैं 80 रुपीज़, 10 रुपीज़ जो है वो कंपनसेट कर दूं, फिर भी मेरे पास कितने बचे? 10 रुपीज़ बचे। अगर गेन करने वाला पर्सन लूज करने वाले को कंपनसेट कर रहा है और फिर भी वो बेटर ऑफ में है पहले के कंपैरेटिवली, पहले पॉइंट जिस पॉइंट पे था उसके कंपैरेटिवली, फिर भी उसे उसके पास ज़्यादा पैसे हैं दूसरे को कंपनसेट करने के बाद भी, देन सोशल वेलफेयर कैन ऑल्सो इंक्रीज, तब भी इंक्रीज हो सकता है। सो प्रोफेसर हिक्स also supported Calder for employing the compensation principle to evaluate the change in social welfare due to change in economic policy. So this criteria states if A is made so much better by change, किसी चेंज की वजह से A को इतना बेटर ऑफ हुआ है that he could compensate B for his loss, कि वो B को उसके लॉस के लिए कंपनसेट कर सकता है, एंड स्टिल समथिंग लेफ्ट ओवर, और फिर भी उसके पास कुछ बचा हुआ है, देन देयर इज इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर, and that is compensation principle, compensating criteria. So let's discuss with the help of diagram. On OX axis there are two individual consumer, individual A and individual B. DE is the utility possibility curve. Utility, it is not a production possibility curve because we are taking a utility. Welfare is measuring in terms of utility, that's why it is utility possibility curve, it's not production possibility curve. सेम पीपीसी की तरफ कनकेव होता है. ऑन एक्स एक्सिस देयर इज एज यूटिलिटी एंड बी पे बी की यूटिलिटी हम ले रहे हैं. अब इनिशियल स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट क्यू, कि क्यू पॉइंट पे पहले दोनों ही इंडिविजुअल पॉइंट क्यू पे सेटल होता है. तो ए की यूटिलिटी और बी की यूटिलिटी अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल है. सपोज कि ड्यू टू पॉलिसी चेंज, कि अगर कोई पॉलिसी चेंज जो है वो इन्वॉल्व हुई है तो मूव कर जाता है फ्रॉम क्यू टू टी, टी पॉइंट पे मूव कर जाता है. अब टी पॉइंट पे देखें तो टी पॉइंट पे अब बेटर ऑफ कौन हो रहा है और वर्स ऑफ कौन हो रहा है. पहले ए की ये थी और अब ये है, तो ए की यूटिलिटी क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई. एज यूटिलिटी हैज बीन डिक्लाइंड एंड द यूटिलिटी ऑफ बी इंक्रीज्ड. बी की यूटिलिटी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स बी इज इन बेटर ऑफ पोजिशन एंड ए इज गोइंग टू वर्स ऑफ. कि अगर क्यू से टी पे मूव कर जाते हैं पॉलिसी चेंज की वजह से तो ए वर्स ऑफ में गया है और बी बेटर ऑफ में चला गया. तो कंपनसेशन क्राइटेरिया क्या कहता है कि इफ बी कंपनसेट द ए एंड स्टिल इन द बेटर ऑफ, देन सोशल वेलफेयर कैन इंक्रीज. अब एक बी क्या करेगा? ए को कंपनसेट करेगा. तो सपोज कि बी क्या करता है, ए को कंपनसेट करने के लिए जो उसको गेन हुआ है उसमें से थोड़ा सा पार्ट ए को दे देता है ताकि जो ये लॉस हुआ है ये उसको कवर कर पाए. मतलब या तो वो इतना देगा जितना उसका कम हुआ है या फिर इससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन बी फिर भी बेटर ऑफ में रहे. तो सपोज करो अब टी से आर पॉइंट पे आ जाता है. जब बी कंपनसेट करता है तो उसकी कुछ यूटिलिटी कहाँ चली गई? ए के पास. जितना उसे ए को लॉस हुआ था उतना उसने ए को वापस कर दिया. आर पॉइंट पे ये पता लग रहा है क्योंकि ए की यूटिलिटी देखो बढ़ के फिर से इसी पॉइंट 1 पे आ गई है. तो ए जो है वो बेटर ऑफ में चला गया है, अब पहले वाले सिचुएशन पे आ गया, और बी फिर भी अभी बेटर ऑफ है क्योंकि उसकी पहले वाली ये 3 पॉइंट पे थी और बढ़ के तो इतनी हुई थी लेकिन फिर भी अभी बढ़ी हुई है, बेटर ऑफ पोजीशन में अभी भी है आर पॉइंट पे बी. तो ये पॉइंट सोशल वेलफेयर इस पॉइंट पे भी इंक्रीज हो सकता है. अब यहाँ पे अगर देखें, अगर वो एस पॉइंट पे आए, बी
बहुत ज़्यादा अगर एस पॉइंट पे अगर वो इतना ज़्यादा कंपनसेट कर देता है तो ए की जो यूटिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन बी क्या है, फिर से अपनी यूटिलिटी उसी वापस पे आ जाएगा। ये तो हो नहीं सकता कि इतना कंपनसेट कर दे कि उसकी यूटिलिटी बढ़ा दे और अपनी यूटिलिटी को फिर से उसी पॉइंट पे ले आए, तो एस पॉइंट पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, बेस्ट जो सोशल वेलफेयर इंक्रीज होने का जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट जी, और एनीवेयर बिटवीन आर टू एस, बिटवीन द ट्रायंगल क्यू आर एस, इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रही है, बिकॉज बिटवीन आर टू एस द वेलफेयर ऑफ बोथ द इंडिविजुअल, यूटिलिटी ऑफ बोथ द इंडिविजुअल इज इंक्रीजिंग। मान लो जी पॉइंट पे आ गए, एक पॉइंट ले लिया जी, तो बी अगर कंपनसेट कर रहा है तो ए की यूटिलिटी देखो 1 से बढ़ के इधर चली गई, राइट साइड में बढ़ गई, और स्टिल बी की जो यूटिलिटी है वो पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो बी अभी भी बेटर ऑफ में है, प्लस ए भी बेटर ऑफ हो चुका है, पहले के कंपैरेटिवली उसको ज़्यादा मिल रहा है अब, तो ए भी बेटर ऑफ हो गया। जब दोनों ही बेटर ऑफ है दैट मीन्स कि सोशल वेलफेयर अच्छा है, सोशल वेलफेयर ज़्यादा बढ़ा है। अगर मान लो एक बेटर ऑफ में है, उसने कंपनसेट किया लूजर को और वो फिर भी उसी पोजीशन पे है, सोशल वेलफेयर तब भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उतना नहीं इंक्रीज होगा जितना कि दोनों के बेटर ऑफ से होगा। तो जी पॉइंट या इस आर टू एस के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो जिस पे दोनों की ही यूटिलिटी बढ़ रही है, उस पे सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है। तो कंपनसेशन क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉलिसी चेंज की वजह से यूटिलिटी एक बेटर ऑफ में जाता है, दूसरा वर्स ऑफ में जाता है, तो अगर फर्स्ट वन बेटर ऑफ पर्सन अगर कंपनसेट कर दे वर्स ऑफ पर्सन को, तो क्या हो सकता है उससे जो, और फिर भी वो बेटर ऑफ में रहे कंपनसेट करने के बाद भी, तो सोशल वेलफेयर तब भी इंक्रीज हो सकता है। ये कैल्डरन हिक्स ने दिया था, जो कि पैरेटो ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो कंपनसेशन प्रिंसिपल, थ्रू द कंपनसेटिंग पेमेंट वेलफेयर कैन बी इंक्रीज्ड। अब देखते हैं कि वेलफेयर कैसे इंक्रीज हो रहा है, सोशल वेलफेयर कैसे इंक्रीज हो सकता है। द चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिंग्स अबाउट, जब सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है तो जो हमारा अभी जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है दैट कैन बी शिफ्टेड टू द राइट वर्ड। सो अ मूवमेंट फ्रॉम पोजिशन इनसाइड द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। उससे हमारी यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जब भी कुछ अच्छा होता है तो क्या होता है, राइट में शिफ्ट होता है, लॉस होता है तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो आउटवर्ड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जो है इंडिविजुअल की, वो हायर यूटिलिटी कर्व पे आ सकते हैं। सो द सोशल वेलफेयर इम्प्रूवमेंट कैन चेंज द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व ऑल्सो। जब भी सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा तो हमारा जो यूटिलिटी कर्व है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, दैट कैन बी चेंज्ड ऑल्सो। इनिशियल यूटिलिटी कर्व यू वी, ये हमारा फर्स्ट यूटिलिटी कर्व है। जब हम क्यू पॉइंट पे थे, इनसाइड इस पॉइंट पे थे, तब हमारा ये था यूटिलिटी कि दोनों ही, अगर क्यू पॉइंट पे देखें तो ए की जो यूटिलिटी है वो कम है और बी की यूटिलिटी ज़्यादा है पॉइंट ए पे। सो द यूटिलिटी ऑफ बी शुड डिक्लाइन एंड यूटिलिटी ऑफ ए शुड इंक्रीज। कि अगर क्यू पॉइंट पे एक की ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है और एक ही कम है, तो हमें यूटिलिटी अगर वेलफेयर बढ़ाना है तो क्या होगा, यहाँ पे क्यू पॉइंट से आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा जहाँ पे बी की यूटिलिटी कम हो जाए और ए की यूटिलिटी बढ़ जाए। तो जब भी अभी पीछे देखा कंपनसेट के बाद वेलफेयर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो वेलफेयर कर्व जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा U1V1 पे। अब पर्सन हायर यूटिलिटी कर्व पे मूव कर सकता है। तो सपोज कि कंपनसेट करने के बाद बी अब किसको कंपनसेट करेगा, ए को, तो बी क्या करेगा, कंपनसेट अगर कर दे और पहुंच जाए एस पॉइंट पे, तब भी वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है क्योंकि बी वर्स ऑफ नहीं हुआ और ए बेटर ऑफ हो गया है।
अगर हम एस पॉइंट को देखते हैं तो एस पॉइंट पे दोनों का ही, एक का बेटर ऑफ हो रहा है, दूसरे का वर्स ऑफ नहीं हो रहा है, तब भी सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे फुल्ली कंपनसेट हो रहा है, जो ए है वो फुल्ली कंपनसेट हो गया, जितना भी इसने गेन किया था उतना उसने वापस कर दिया, ए को बेटर ऑफ में डाल दिया है। अगर हम यहाँ पे आर पॉइंट को लेते हैं तो आर क्या डिनोट करता है, बट पोजीशन आर डिनोट द ग्रेटर सोशल वेलफेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैल्डर क्राइटेरिया विच कंपेयर टू पोजीशन क्यू। क्यू से एस और आर दोनों ही बेटर है, लेकिन अगर आर पे देखें तो आर पे देखो कि बी की यूटिलिटी कम हो गई है, ए की तो बढ़ गई है लेकिन बी की कम हो गई है, तो ये वाला पोजीशन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि एक वर्स ऑफ में चला गया इसको कंपनसेट करने के चक्कर में। तो हायर यूटिलिटी कर्व पे एस पॉइंट जो है वो बेटर ऑफ को शो कर रहा है, जहाँ पे दोनों ही कंज्यूमर, दोनों ही इंडिविजुअल जो है वो बेटर ऑफ में। तो जब भी कंपनसेट करने के बाद दोनों इंडिविजुअल या कोई एक भी इंडिविजुअल एक कंपनसेट होके ठीक हो जाता है, दूसरा कंपनसेट करने के बाद भी अगर बेटर ऑफ में होता है तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है, और सोशल वेलफेयर जब इंक्रीज होता है तो हमारा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जो है वेलफेयर कर्व दैट शिफ्टेड टू द राइट वर्ड। तो यहाँ पे क्यू से आर की तरफ, क्यू टू एस की तरफ जो है दैट शोज द इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, एंड आर पॉइंट जो है यहाँ पे एक वर्स ऑफ में जा रहा है, तो हम इसको नहीं शो कर सकते कि आर जो है वो बेटर पोजीशन है। सो एज कंपेयर टू क्यू, एस एंड आर बोथ इज बेटर, बट एस is more better than R. So this theory was all about the compensating principle, the how one person, better off person, is compensating the loser and worse off person, so that social welfare can be increased in these situation also, because government policy doesn't always make all person better off, it always makes someone better off and other one worst off। कि पॉलिसी कभी भी ऐसी नहीं बनाई जा सकती जहाँ पे सारे ही पर्सन को वो फ़ायदा पहुँचाए, किसी को नुकसान भी हो सकता है, किसी को फ़ायदा भी हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो सोसाइटी में जो प्रैक्टिकली अगर देखें तो इस तरीके से होता है। तो हिक्सर कैलर ने कहा था कंपनसेट करके उसको जो है वो हम सोशल वेलफेयर को तब भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जब एक को नुकसान हो रहा है तो वेलफेयर बिल्कुल ही नहीं इंक्रीज़ होगा, ऐसा सिचुएशन नहीं आता है। ये कैल्डर एंड हिक्स ने समझाने की कोशिश की है कि अगर एक वर्स ऑफ में भी जा रहा है तब भी इंक्रीमेंट होता है, ग्रोथ तब भी बढ़ सकती है इकोनॉमी की। तो कैल्डर एंड हिक्स जो है पैरेटो की जो चीज़ें छूट गई थी, पैरेटो ने जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की उसको समझाने की कोशिश की है। So in the next part, we will learn and we will discuss about the Sitovisky theorem, that is also related to new welfare economics. So this is all about the compensation principle. Thank you so much.